इज एम ऑडिबल? बिना आप क्या मेरी आवाज़ सुन सकते हैं और स्क्रीन पे आपको पीपीटी नज़र आ रही है? Yes, ma'am, it's visible. Okay. So good morning. We are going to again continue the chapter agriculture. So we have studied different things about agriculture in India. We are going to continue with the topic. Then you can see the rest of the PPT also, because in the previous classes I have taught you with the help of NCERT book. But now the rest of the topics I'm going to cover with this PowerPoint presentation. So first of all, we were doing this topic, that is major crops. A variety of it, food and non-food crops are grown in different parts of country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. So in India, variety of crops are grown, like major crops जिसे हम खाते हैं, which are the staple crops are wheat, rice, millets, maize and pulses. Millets वो आपके grains होते हैं which are coarse grain. Coarse grain means जिनका size बड़ा होता है, like आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया. So these are the coarse grained crops. They are known as millets. Then maize, makka, pulses means different types of legumes or the pulses जो हम कंज्यूम करते हैं. So these are the grains. Then food crops other than grains which are grown in India are sugarcane, oil seeds, tea, coffee, and horticulture crops. Sugarcane, you already know that is the ganna which is used to make sugar. Oil seeds like mustard, then आपका different things जिससे हम जो है oil जो है extract करते हैं. तो वो हमारा तिल हो गया, आपका मस्टर्ड हो गया, sunflower seeds हो गए. So they are used to extract different types of oil. Then tea, coffee, horticulture crops. Tea and coffee are the examples of plantation crops which you have studied. Then horticulture crops. Horticulture crops are those crops which are grown basically in this crop. Fruits and vegetables of high value are grown for the urban markets. Alright, आपको आवाज आ रही है मेरी? Children, can you hear my voice? Yes, ma'am. All right. So horticulture crops are basically those which are grown near the urban markets and for the rich consumers. For example, there are certain flowers like आप कभी भी फ्लावर की दुकान देखोगे, फ्लोरिकल्चर जो देखोगे आप, वो अर्बन एरियाज के पास ही देखोगे, क्योंकि गांव में कुछ ऐसी हैबिट्स नहीं है कि लोग जो है फ्लावर खरीदें. जो है रूरल एरियाज में ये कल्चर नहीं होता है, लेकिन जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे फंक्शंस होते हैं या फिर नॉर्मली अपने घरों पे रखने के लिए लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स खरीदते हैं, लाइक ट्यूलिप हो गया, रोज है, या फिर अदर देन मैरीगोल्ड है. डिफरेंट जो क्रॉप आपके फ्लावर्स होते हैं, और जो नॉर्मल फ्लावर्स से हट के जो फ्लावर्स हम लोग नॉर्मली अपने घरों में नहीं ग्रो करते हैं, वो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है. सो और एंड देन वेजिटेबल्स लाइक आप ब्रोकली सुनते हो, या फिर ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो हम नॉर्मली अपने इंडिया में पहले इतना कल्चर नहीं था, लेकिन आजकल आप जो है ये फॉरेन कंट्रीज का जो कल्चर है हमारे देश में काफ़ी, जैसे हम लोग कहते हैं ब्रोकली बहुत अच्छा होता है, ऑल्दो इट इज़ ए वैरायटी ऑफ दिस जो आपका गोभी होता है, वो उसी की एक वैरायटी है, बट हम लोग कहते हैं कि ब्रोकली इज़ वेरी उसमें ज़्यादा इट इज़ वेरी रिच, और ऐसे ही बहुत सारे ज़ुकूनी है ना. तो वैसे ज़ुकूनी भी आपका लाइक जो हमारे यहाँ पे कद्दू होता है, उसी की डिफरेंट वैरायटी है, बट अगेन हम ज़ुकूनी को बहुत अच्छा समझते हैं. तो ये एक ट्रेंड एक डेवलप हो चुका है. तो ऐसे रिच कंज्यूमर्स के लिए हु कैन अफोर्ड हाई वैल्यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, horticulture type of farming is done. So if in examination it is asked what is horticulture, then you will answer that horticulture is basically the growth when farmers grow high value fruits, vegetables and flowers for the urban market, then this type of farming is known as horticulture farming. And it is and for this purpose good system of transportation is very important. अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो हॉर्टिकल्चर जो है ये जो आइटम्स है पेरिशेबल हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं. और बेसिकली हॉर्टिकल्चर जो फार्मिंग होती है वो सिटीज़ के आसपास ही की जाती है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है. ये नहीं है कि आप वहाँ से 50 किलोमीटर्स दूर कर रहे हैं या से 100 किलोमीटर्स दूर कर रहे हैं, कम से कम 30-35 किलोमीटर्स की दूरी पर ही ये फार्मिंग होती है, 20 किलोमीटर्स, ताकि जो आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो फ्रेश रहें और उन्हें आसानी से अर्बन मार्केट तक पहुँचाया जा सके. देन ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई हॉर्टिकल्चर फार्मिंग इज डन नियर द अर्बन एरियाज. तो आपको उसका आंसर समझ में आ चुका, समझ में आया? आप बता सकते हैं मुझे वाई हॉर्टिकल्चर फार्मिंग इज डन नियर द अर्बन मार्केट्स, अर्बन एरियाज?
Ma'am, because people are more likely to buy flowers in the urban city area than rural. ओके यस बिकॉज बिल्कुल आपने सही बताया वीना बेसिकली द आंसर इज हॉर्टिकल्चर जो होता है, अगर जो बच्चे अभी ऐड हुए मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. हॉर्टिकल्चर बेसिकली इज द बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट कैन कम इन योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. लाइक हॉर्टिकल्चर इज द ग्रोथ ऑफ इज ग्रोइंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग हाई वैल्यू क्रॉप्स. High value crops like fruits, vegetables and flowers which we normally do not purchase from the नॉर्मल एरिया लाइक रूरल एरियाज जो होते हैं या जो हमारे डेली मार्केट्स होते हैं वहाँ पे हमें नहीं मिलते हैं. तो ये क्रॉप जो होते हैं हमें स्पेशल जो हमारी शॉप्स होती है वहाँ पे हमें अवेलेबल होता है. तो ये जैसे आपने ट्यूलिप का फ्लावर आपको चाहिए या आपको लिली फ्लावर चाहिए है ना, या फिर आपको ऐसे और कुछ अच्छे फ्लावर्स चाहिए जो हम नॉर्मली नहीं सुनते, तो आपको ये कहाँ से मिल पाएगा? फ्रॉम हॉर्टिकल्चर फार्मिंग. तो इसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं एंड जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिनका मार्केट प्राइस हाई होता है. That's why they are grown near the urban market because of the good transportation facility. And second is because of the rich urban consumers. वहाँ पे जो है अमीर लोग रहते हैं जिनकी परचेसिंग पावर हाई होती है और वही इस क्रॉप्स को खरीद सकते हैं. तो आप गांव में अगर ऐसे क्रॉप्स ग्रो करोगे तो आपसे कोई भी नहीं खरीदेगा. देन आपके नेक्स्ट आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स. नॉन फूड मतलब जिसे हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते बट दे आर यूज फॉर डिफरेंट अदर purposes, and they're very important, they're very valuable crops because they are grown for the profit, to earn profit, like rubber, fiber crops, cotton, jute. ठीक है, तो ये जो आपके फाइबर क्रॉप्स होते हैं जिसमें से रेशे हम यूज करते हैं ना, थ्रेड्स बनाते हैं. सो रबर आपका जो हो गया, रबर जानते हो इट हैज वैरायटी ऑफ यूजेस. फाइबर क्रॉप्स हो गया, कॉटन है, कॉटन इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. जूट अगेन, जूट से आजकल जो है बिकॉज ऑफ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स का जो है एक ट्रेंड है और हम लोग काफ़ी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो चुके हैं, तो हम लोग जूट के यूज़ जो है उसको एम्फोसाइज कर रहे हैं, उसका यूज़ इंक्रीज हो रहा है. Now next is rice. Although we have already done this topic, but again in the PPT we will see this. Rice is the staple crop of India. वीट की जगह आपको पता होना चाहिए, वीट तो है हमारे देश में काफी इंपॉर्टेंट, बट राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना. अगेन इट इज ए खरीफ क्रॉप विच यू ऑलरेडी नो. इट इज ए खरीफ क्रॉप एंड इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ. It requires high temperature above 25 degrees centigrade and high humidity, that the moisture in the air should be high. Then it requires annual rainfall above 100 centimeter. Minimum 100 centimeter rainfall तो होना ही चाहिए. So these are the geographical requirements for the growth of rice, because in the examination they can ask you, for example, rice is a which crop, which season crop, so you should know it is a kharif crop. Temperature requirement, it needs high temperature of 25 degree. It requires high humidity and high rainfall above 100 centimeter. Then where it is grown? It is grown in the plains of north and northeastern India. All the coastal areas, as I had explained to you, जो भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं साउथ के, जैसे आप ये देखेंगे इंडिया के जो भी ये सारे क्षेत्र हैं जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से सटे हुए हैं, ये पूरे एरियाज में हमारा राइस ग्रो किया जाता है. जितने भी हमारे डेल्टाइक रीजन्स हैं, लाइक ये हमारा महानदी डेल्टा हो गया ओडिशा में, कृष्णा डेल्टा हो गया आंध्र प्रदेश में, देन हमारा कावेरी डेल्टा हो गया, देन तमिलनाडु में. तो इस तरह से जितने भी डेल्टाइक रीजन्स हैं वहाँ पे भी आपका because they're highly rich in alluvial soil, though so rice cultivation is done there also. Then आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, वेस्ट बंगाल, that is also one of the largest producer of rice. In fact, West Bengal is the largest producer of rice in India. So these are the areas. Remember all this. North India में क्या आता है आपका? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, then West Bengal. देन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में असम आता है. कोस्टल एरियाज आप समझ गए, इंडिया का जो भी कोस्टल एरियाज हैं विच आर नियर टू द सी एंड द डेल्टाइक रीजन्स. Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall also. So as you know that rice is a water intensive crop, but those areas where there is good irrigation facilities like canal irrigation, जहाँ पे tube wells present है, like पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर भी राइस की कल्टीवेशन की जा रही है. लेकिन राइस एक आपका वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और इन एरियाज में जो है पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में रेनफॉल बहुत अच्छी नहीं होती है, बट स्टिल राइस इज ग्रोन बाय बिकॉज ऑफ फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन. सो हियर इन द मैप आप देख सकते हो, इंडिया का मैप है ये. सो ऑल द मेजर एरियाज आर द ग्रीन शेडेड एरियाज. हियर यू कैन सी
the eastern Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, then these are the some patches, then the coastal areas, ये सब, then Assam area, these are the rice producing areas, and these are the less यहाँ पर भी जैसा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी है, you can see rice is produced but in a but it is supported by the network of irrigation. यहाँ पे natural conditions नहीं है. Then next is wheat. Wheat is the second most important cereal crop of India. Main parts are north and northwestern part of the country. North and northwestern means आपका हरियाणा, western UP and Punjab. These are the areas, the largest producer of wheat in India. In fact, उत्तर प्रदेश तो पूरा ही आता है, because उत्तर प्रदेश जो है it is the largest producer of wheat in India, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है. It requires cool growing season. As you know that wheat is a rabi crop. आपको मालूम होना चाहिए, मैं ये सारी चीज़ें आपसे पूछूंगी at the end of the chapter. It is grown in the cool season. इसको high temperature नहीं चाहिए होता है, medium temperature चाहिए. So it is grown in the October month and bright sunshine. मतलब ठंडा मौसम चाहिए, टेम्परेचर बहुत हाई नहीं हो, लेकिन इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए. अगर ज़्यादा, जैसा आपने इसको सो किया क्रॉप में, ठीक है, उसी समय बारिश हो गई, तब ये दैट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर द क्रॉप. दैट्स वाई सोचो कि इसे क्यों ग्रो करते हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हमारे इंडिया में बहुत बारिश होती नहीं है ना. तो और लेकिन जो है सनशाइन होता है, मतलब इंसुलेशन पहुंचता रहता है, तो ये बेस्ट आपका जो है टाइम होता है. It requires 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन. तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल में हो जाता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इरिगेशन इस्तेमाल हो जाता है. देन इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर इट इज़ ग्रोन इज गंगा सतलुज प्लेन. गंगा आप जानते हो पूरा, जहाँ से भी गंगा रिवर उत्तर प्रदेश से होते हुए जाती है. देन सतलुज कहाँ पे आपका, पंजाब में. एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन दक्कन, जो आपका दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र गुजरात का पार्ट, वहाँ पे जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है वहाँ पर भी वीट ग्रो किया जाता है. देखो राइस वीट हर जगह ग्रो किया जाता है, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं विच आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स, कुछ स्टेट्स ऐसे जहाँ पे सम पॉकेट्स में ग्रो किया जाता है. देन मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं, पंजाब, ये स्टेट्स हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. अगर वो आपसे एग्जाम में पूछे विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, तो आप आंसर क्या करोगे, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो ज्यादा है. तो एरिया वाइज जो है उस अकॉर्डिंग आपका यूपी का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है. लेकिन पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उसे कहते हैं पर यूनिट एरिया, क्योंकि पंजाब का एरिया कम है बट वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, एरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होती है. बट लेकिन अगर हम टोटल प्रोडक्शन देखें तो वो उत्तर प्रदेश से कम ही होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एरिया ज़्यादा है. ठीक है, तो पर एकड़ जो अगर हम देखें कि जैसे कहते हैं ना गहन कृषि करना, इंटेंसिव फार्मिंग, तो पंजाब में इंटेंसिव फार्मिंग होती है वीट की. सो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है अगर हम यूपी से कंपेयर करें तो एरिया के अकॉर्डिंग. लेकिन ऑटोमेटिकली जो है वीट के मामले में यूपी आगे निकल जाता है, बिकॉज यूपी का एरिया ज़्यादा है. These are the largest producers. आप याद रखिएगा, यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एरिया वाइज, एंड पंजाब जो है वो आपका होता है पर एकड़. अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो है पंजाब आगे, लेकिन एग्जाम में मेनली यही आता है तो आप उत्तर प्रदेश ही करोगे. ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश. एंड हियर इन द मैप यू कैन सी मेजर एरियाज आर दीज. द पिंक शेडेड एरियाज, डार्क पिंक शेडेड एरियाज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया. जहाँ पे आपका देखो हिमाचल प्रदेश के भी कुछ एरियाज आ रहे हैं, उत्तराखंड भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश का पूरा वेस्टर्न पार्ट आ रहा है, देन मध्य प्रदेश का सेंट्रल पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट आ रहा है, देन आपका राजस्थान नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न, एंटायर हरियाणा एंड पंजाब एंड दिल्ली पार्ट. सो दीज आर द मेजर एरियाज ऑफ व्हीट इन इंडिया. Now next is, children, can you hear my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now next is millets. Millets, as I said, these are the coarse grained, the size of the grain is coarse, जो बड़े साइज के होते हैं. ठीक है, लाइक ज्वार. आपने कभी ज्वार, बाजरा एंड रागी का जो है फ्लोर का कुछ चपाती या कुछ ऐसा कुछ खाया आप लोगों ने, कभी कंज्यूम किया है, बताइए. Yes, ma'am. क्या मीना बताइए, आपने क्या यूज किया है Ma'am, इसका? I've had ragi. Ragi, yes, Mostly because found in southern areas. I've had yes, ragi. in fact Karnataka is the largest producer of ragi ना. Yes, ma'am. तो वहाँ पे जैसे हम लोग अपने नॉर्दर्न साइड में ना ये आपने सुना होगा सत्तू जो होता है
है ना, जो चने को जो है हम ग्राइंड करके जो बनाते हैं उसको हम एक एज ए ड्रिंक भी यूज करते हैं ना पीने के लिए गर्मियों के मौसम में। वैसे ही वहाँ के जो लोग हैं साउथ में, तो मैंने देखा कि उसे रागी जो होता है उसके जो उसका जो फ्लोर होता है उसमें कई चीजें मिक्स करके, हर्ब्स हैं चाहे स्पाइसेस मिक्स करके उसे एज ए मतलब उसे पीने के लिए भी यूज करते हैं। देन बाजरा, आपको पता है कि अगर आप राजस्थान में जाओगे तो बाजरा की रोटी होती है। वो जैसे कि आपने मक्के की रोटी खाई होगी ना, तो वो बहुत ज्यादा, जैसे व्हीट का आटा होता है ना, आप उसे आसानी से बेल सकते हो, उसे आप चपाती के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो। ये सब बहुत आसानी से मतलब समझ रहे हो ना कि इनको इनको चपाती के फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये सब क्योंकि ये कोर्स ग्रेन्ड होते हैं, ये पीसने के बाद जो होते हैं, ये इसमें वो एक स्टार्च नहीं होता है जो बाइंड करके रखता है, वो स्टार्च वैल्यू इसमें नहीं होती है, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट दे हैव न्यूट्रिशनल वैल्यू। और जब से आजकल आपका जो है हेल्थ का जो एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि हमें क्योंकि आपका जानते हो कार्बोहाइड्रेट फैट जो होता है वो व्हीट के आटे में ज़्यादा होता है। सो नाउ पीपल आर प्रेफरिंग मोर ऑफ ज्वार, बाजरा एंड रागी, क्योंकि इसमें जो होता है स्टार्च कम होता है, इसमें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एज कम्पेयर टू व्हीट रोटी कम होता है। ठीक है, तो ज्वार है, या तो आजकल लोग मिक्स आटा खा रहे हैं। सो ये क्या होता है, क्योंकि इसे हम अकेले नहीं खाते, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर आप राजस्थान में जाओगे, हरियाणा में जाओगे, तो वहाँ पे लोग बाजरा ही मेनली कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे व्हीट कम होता है और वहाँ पे बारिश तो कम होती है राजस्थान में, तो वहाँ पे लोग मेनली बाजरा ग्रो करते हैं, ज्वार ग्रो करते हैं। Now, these are known as coarse grain. They have nutritional value, as I said. They have high nutritional value, and they are good for health, for health purpose. Ragi is rich in iron, calcium, and other micronutrients and roughage. It is a crop of dry regions. Dry regions में grow किया जाता है, and on red, black, sandy, loamy, shallow soils. मतलब इसके ये आसानी से कहीं भी ग्रो किया जा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फर्टाइल सॉइल में तो आपका व्हीट एंड राइस ग्रो हो रहा है। तो आप जो भी हमारे इंडिया में और जगह बच जाती हैं, वहाँ पे ये सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय तमिलनाडु। रागी सबसे अधिक कहाँ पे होता है? कर्नाटका में, उसके बाद तमिलनाडु में, देन कुछ आपके स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉकेट्स में ग्रो किया जाता है। नाउ ज्वार, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। इट इज ए रेन फेड क्रॉप। रेन फेड क्रॉप मतलब क्या होता है कि ये जहाँ जहाँ बारिश होती है हल्की फुल्की, वहाँ पे इसको ग्रो कर देते हैं। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक जो ज्वार होता है वो कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। ये सारी चीजें याद रखना, रागी, कर्नाटका, ज्वार, महाराष्ट्र। देन नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा कहाँ पे होता है? एज आई सेड, बाजरा जो राजस्थान में मैक्सिमम लोग व्हीट की जगह बाजरे की रोटी कंज्यूम करते हैं। सो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। मेनली यही आ सकता है, आपका प्रोड्यूसर्स के बारे में आ सकता है, वरना इतना ज़्यादा डिटेल में मिलेट्स के बारे में नहीं आता। अब आप यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर, रागी आपका ये रहा, राइट, एंड इट इज ब्लैक, बिल्कुल ब्राउनिश कलर में। अगर आप इसका आटा देखोगे ना तो बिल्कुल ब्राउनिश कलर में होता है। देन ये आपका ज्वार है, ज्वार देखिए इसका भी साइज काफी बड़ा है। ये बाजरा है। तो कई लोग, आप लोगों ने कई चीजें देखी भी होंगी। देन नाउ मेज। मेज तो आप सब जानते हो, आप इसे खाते भी हो, आजकल तो काफी मिल रहा है ये। यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप मतलब हम इसे अपने गाय भैंसों को, कैटल्स को भी खाने के लिए देते हैं, हम खुद भी खाते हैं। इट इज ए खरीफ क्रॉप। आज के टाइम में ये मिलता भी है, 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हो जाता है, एंड एलुवियल सॉइल में ग्रो हो जाता है। देन बिहार में काफी अच्छा ग्रो किया जाता है इसको, रबी क्रॉप, मतलब बिहार के में इसको सर्दियों में भी ग्रो करते हैं। देन इसको ग्रो करने के लिए मॉडर्न इनपुट्स यूज किए जाते हैं, लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन। एंड देन सबसे ये सबसे अधिक कहाँ पे होता है? कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र एंड मध्य प्रदेश। सो इंडिया में हम लगभग हर जगह ही मक्का जो है उसे ग्रो किया जाता है, और ये खरीफ सीजन में ग्रो होता है, और आराम से, मतलब इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि इसे मार्केट में भी सेल किया जाता है। इट इज ए फूड एंड फॉडर क्रॉप बोथ। नाउ पल्सेस। पल्सेस आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जो दाल होती है ना, दाल आप लोग खाते हो सब लोग दाल? बताइए, यस और नो, आपको आवाज आ Yes, रही है? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। तो Yes, पल्सेस मतलब, यस, पल्सेस मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो दाल हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो सबके, आप लोगों की फेवरेट दाल कौन सी है बताइए? कौन सी दाल खाना पसंद करते हैं? दालों के नाम पता है आप लोगों को? कभी खरीदा है मैम मार्केट से? राजमा। कौन सा? मैम राजमा। राजमा। ओके, ठीक है, और बताइए, कुछ दालों के नाम बताइए। मैम उड़द। Ma'am, urad. यस,
तो आप लोग घर में खाना तो गर्ल्स बनाती होंगी खाना या बॉयज भी बनाते होंगे, है ना? तो आपको पता ही होगा कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जो है दालें प्रेजेंट होती है हमारे घरों में, स्पेशली इंडियन जो हाउस होल्ड है, हम लोग वी आर इनफैक्ट वेजिटेरियन कंट्री हमारा, और हमारे देश में नॉन वेज बहुत कम कंज्यूम किया जाता है। सो हमारा जो मेन प्रोटीन जो इनटेक होता है दैट इज फ्रॉम द पल्सेस, बिकॉज दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन। आपको पता है ना प्रोटीन में रिच होता है पल्सेस, ठीक है? सो दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वेराइटी ऑफ पल्सेस आर ग्रोन इन इंडिया। ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा कल्चर नहीं है, हमारे देश में राइस है या डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जो है हम लोग डेली पल्सेस कंज्यूम करते हैं। लाइक तुर अरहर हो गया, जो सबसे कॉमन दाल होती है अरहर की दाल, है ना? उड़द हो गया जो ब्लैक वाली होती है, मूंग की दाल होगी जो ग्रीन होती है, मसूर की दाल जो ऑरेंज कलर में होती है, पीस मटर हो गया या चना हो गया, है ना? सो दिस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ pulses are grown in India. They are very rich in protein, high source of protein for the vegetarian people. Then pulses need less moisture. Their very good thing is that they can grown in less moisture. इनको पानी कमी बहुत नहीं चाहिए होती, ड्राई कंडीशंस में ग्रो हो जाते हैं ये. Then all these crops except arhar helps in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air, because of which it is grown in rotation with other crops. तो आपने इसकी खासियत सुनी होगी कि जो भी आपके पल्सेस होते हैं वो एयर से नाइट्रोजन लेके उसे सॉइल में मिक्स कर देते हैं, अब जो भी इनका प्रोसेस होगा उसके थ्रू. सो बेसिकली दे हेल्प इन द फर्टिलिटी, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो फार्मर्स बेसिकली क्या करते हैं, मालूम उन्होंने वीट ग्रो किया या राइस ग्रो किया, तो उसके बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग दीज क्रॉप्स दे ग्रो पल्सेस इन देयर फील्ड. अपने खेतों में वो पल्सेस ग्रो कर देते हैं, जिससे कि अगेन सॉइल में नाइट्रोजन जो है फिक्स हो जाता है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है. सो पल्सेस आर ग्रोन इन द रोटेशन फॉर्म आफ्टर स्टेपल क्रॉप. पल्सेस आर ग्रोन बाय द फार्मर्स इन द इंडियन फील्ड में ग्रो किए जाते हैं टू फिक्स नाइट्रोजन. मेजर तो आप क्वेश्चन आ सकता है विच क्रॉप हेल्प्स इन द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, तो आप क्या आंसर करोगे बताइए बच्चों? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम पल्सेस. हाँ, तो आंसर क्यों नहीं करते हो? तुरंत आंसर किया करो, ठीक है? तो जो पल्सेस होते हैं, दालें जो होती हैं, दे हेल्प इन द रिस्टोरिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. नाउ मेजर पल्सेस ग्रोन एरियाज आर मध्य प्रदेश. इनफैक्ट मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल ग्रो होती है, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. देन आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है एंड कर्नाटका. सो दीज आर द हाई प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्सेस इन इंडियन. जो आपका मध्य प्रदेश है, इट इज अ ड्राई एरिया, बेसिकली बारिश बहुत कम होती है, लेकिन क्योंकि ये क्रॉप्स बहुत ही कम बारिश में सर्वाइव कर जाते हैं, तो इसलिए वहां पे ग्रो किए जाते हैं. नॉट शुगर केन. शुगर केन इज ए कैश क्रॉप, इट इज ए प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है? एंड मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इट टेक्स 1 year टू ग्रो. इट इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. मतलब ये इक्वेटर के थोड़ा पास भी ग्रो किया जा सकता है और इक्वेटर से थोड़ा सा दूर भी ग्रो किया जा सकता है, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो इट इज ए बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. ट्रॉपिकल आप जानते हो कौन से एरियाज होते हैं, विच आर नियर टू इक्वेटर अबव 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, उसे हम ट्रॉपिकल कहते हैं. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो एरिया है उसे हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इक्वेटर से दूर पड़ जाता है. देन इट रिक्वायर्स अगेन हाई टेम्परेचर. इट इज ए खरीफ क्रॉप है. जो भी खरीफ क्रॉप है समझ लो कि उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, एंड रेनफॉल बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर. देन इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स. इट नीड्स मैनुअल लेबर. मैनुअल लेबर की जरूरत होती है इसे सॉइल में सो करने से लेके इसको काटने तक. India is the second largest producer of sugar cane in world after Brazil. Then आप जानते हो कि शुगर केन से जो जूस निकलता है उससे क्या क्या बनता है, शुगर, जैगरी, खंडसरी एंड मोलासिस. ये खंडसरी ये सब एक वैरायटी ऑफ आपके जैसे ब्राउन शुगर हो गया, मोलासिस, खंडसरी हो गया, जैसे कि आपका मतलब कि शुगर को ही मेल्ट करके डिफरेंट जो और बारीक जो बनाया जाता है उसको खंडसरी कहते हैं. देन मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है वो उत्तर प्रदेश जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का पूरे इंडिया में. महाराष्ट्र में ट्रेंड और बढ़ता जा रहा है, अब उत्तर प्रदेश की जगह शिफ्ट हो गया है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन अब महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो गन्ने होते हैं ना, साउथ इंडिया के गन्ने, वो काफ़ी थिक होते हैं, मोटे होते हैं, उसमें सुक्रोज कंटेंट हाई होता है. कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा.
तो आपको पता है कि देखो सबसे इससे पहले जो नॉर्थ इंडिया के जो शुगर केन सबसे अधिक प्रोड्यूस की जाती थी, लेकिन जब से यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। तो अब जो फार्मर्स हैं, क्योंकि शुगर केन को ग्रो करने में काफ़ी इनपुट चाहिए होता है, देन इट टेक्स अ लॉन्ग ईयर, 1 ईयर। तो आपका जो भी फार्मर से ग्रो करते हैं उनका पूरा का पूरा खेत ऑक्यूपाई हो जाता है फॉर 1 ईयर, वो कोई और क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते हैं। और जब वो शुगर मिल्स में अपने गन्ने को बेचने के लिए जाते थे तो उनको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, और क्योंकि बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती थी, जितना उनका इनपुट लग रहा है सरकार उससे कम रेट में उनसे खरीद लेती थी, या जो प्राइवेट मिल कंपनीज थी, तो इससे उनको घाटा होता था फार्मर्स को। उन्होंने क्या किया, यूपी और बिहार में गन्ना जो है बोना बंद कर दिया, तब बहुत कम कर दिया। गन्ने सड़ जाते थे, खराब हो जाते, अब जानते हो पेरिशेबल आइटम है, तो इससे काफी नुकसान होने लग गया। तो अब क्या है कि वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया कहाँ, साउथ इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सिस्टम है। तो गवर्नमेंट जो होता है उन्हें अच्छा प्राइस देती है गन्ने का, क्योंकि नहीं देगी तो कोऑपरेटिव जो है उनको गन्ना नहीं बेचते। और लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उनसे जो है उनके दबाव में आके उनको देना पड़ता है। तो वहाँ पे कोई किसी तरह की सरकार मनमानी नहीं कर सकती, वहाँ के फार्मर्स को काफी प्रॉफिट होता है, अनलाइक द फार्मर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लाइक उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो अब क्या है कि वहाँ पे ज्यादा बेहतर हो गया है शुगर केन प्रोडक्शन। वहाँ के गन्ने जैसे मैंने आपको बताया कि काफी थिक होते हैं, सुक्रोज कंटेंट भी हाई होता है, तो वहाँ पे ट्रेंड काफी इंक्रीज हो रहा है। आपको देख के खाने का भी मन कर रहा होगा। ये देखिए, ये है शुगर केन। कभी आपने गन्ना खाया है, बताइए? Yes, ma'am. आप लोगों के कभी खेत देखे गन्ने के? वैसे तो यहाँ पे देहरादून जाते होगे तो होता ही होगा। यहाँ पे यूपी का कोई बच्चा है क्या? Yes, ma'am. ओके, तो बीना आपने देखा होगा साउथ आंध्र प्रदेश में भी गन्ना होता है। Yes, ma'am. There are many fields in Andhra Pradesh, यस। and these are mostly grown on the borders of Telangana and Andhra Pradesh. ओके, तो आप देख सकते हो कि जो है साउथ इंडिया में भी काफी, पहले इतना नहीं था लेकिन अब ट्रेंड जो है जब से नॉर्दर्न इंडिया में फार्मर्स ने छोड़ा तो वहाँ पे काफी बेनिफिट हो गया। वहाँ के गन्ने में सुक्रोज कंटेंट काफी अच्छा होता है। तो और गन्ने का जूस भी आप लोग पीते होगे, तो इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। नेक्स्ट इज टी। नाउ टी आई थिंक एक हमारे इंडिया में हैबिट हुई है जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए, ठीक है ना। ब्रिटिश जब, या फिर जो यूरोपियंस जब हमारे इंडिया में आए, तो यूरोपियंस में तो कई देश हमारे कंट्री में आके उन्होंने रूल किया, बट जब ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पे टिक गए, उन्होंने कई ऐसी नई चीजें हमारे देश में इंट्रोड्यूस की जो पहले नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल टी, ये इट इज अ ब्रिवरेज क्रॉप, जिसे हम अब लगभग मुझे लगता है हर इंडियन की एक हालत होती है कि मतलब एक हैबिट हो चुकी है दैट एवरी मॉर्निंग और इवनिंग और आफ्टरनून जब मन करे या जब हमें लगे स्ट्रेस हो रहा है या जब हम हमें वर्क बर्डन फील होता है, सो वी लाइक टू कंज्यूम टी, और साउथ इंडिया में कॉफी, ठीक है। सो दीज आर द बेवरेज क्रॉप्स जो कि पहले नहीं था। आफ्टर ब्रिटिशर्स दे हैव इंट्रोड्यूस्ड टी इन इंडिया, ऑल्दो फॉर देयर ओन बेनिफिट, सो दैट दे कैन ग्रो टी इन इंडिया एंड दे कैन एक्सपोर्ट, और दे कैन टेक दीज टी लीव्स और टी जो मैन्युफैक्चर करके अपने देशों में और यूरोपियन कंट्रीज में उसे बेच के पैसे कमा सके। So it is an example of plantation crop. It is an important beverage crop, and it was introduced by the Britishers in India. Tea plant grows well in tropical and subtropical climates. Again, जैसे गन्ना आपका tropical and subtropical climate है, crop है, वैसे टी भी आपका tropical areas और subtropical areas में grow किया जाता है, जहाँ पे temperature high होना चाहिए, high and humid होना चाहिए, ठीक है। तो वो उसके लिए बेस्ट होता है। ये सारी चीजें, टी, कॉफी, ये आप सोचते हो कि हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट एरियाज में कि हम ये सब ग्रो कर सकते हैं, वरना आप क्यों ब्रिटिशर्स यहाँ पे आके ये सब ग्रो करते थे, क्योंकि उनका देश टेम्परेट एरिया में पड़ जाता है जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, तो वहाँ पे ये चीजें सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया, क्यूबा या फिर फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऐसे फिजी आइलैंड, इन सारे देशों को चुना जो ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ते हैं। तो वहाँ पे कैश क्रॉप को ग्रो करते थे और जिससे उनको काफी बेनिफिट होता था। Then they require deep and fertile soil, then which should be rich in humus and organic matter में rich होना चाहिए soil. Then tea bushes require warm and moist free climate throughout the year. उन्हें कैसा मौसम चाहिए होता है, काफी गर्म होना चाहिए। जैसे आप साउथ में जाइए तो काफी गर्म होता है ना क्लाइमेट, तो वहाँ पे कॉफी जो है वो ग्रो होती है। Then tea requires abundant, cheap and skilled labor. अब जानते हो जैसे कि टी क्या है, इट इज अ कैश क्रॉप, इट इज फॉर कमर्शियल पर्पस, और कॉफी, तो इसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं जो कि ये देख सके कि कौन सी पत्ती जो है, कौन सी लीफ टेंडर है, किसको हमें तोड़ना है ना, और किस तरह से उसको मतलब हमें ग्रो करना है, क्योंकि हम कॉफी और ये सब चीज़ अपने घरों में ग्रो नहीं कर सकते हैं, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए जिन्हें इसकी पूरी नॉलेज हो।
ट्री इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि ये आप टी गार्डन देख रहे हो ना, इसी में यहाँ पे टी फैक्ट्री भी इसी के पास होती है, ताकि पत्तियों को ज्यादा समय ना लगे पहुंचाने में और वो आसानी से टी फैक्ट्री तक वहीं पे पहुंचाया जा सके और उनको वहीं पे प्रोसेस किया जा सके। देन ताकि वो फ्रेशनेस, देखो फ्रेशनेस उसमें रिस्टोर हो सके। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, देन हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, Tamil Nadu and Kerala. So these are the South Indian states, and the northeastern states are the producers of tea and coffee, because these are the hilly areas. Hilly areas में ही आप ये जो है इस तरह का कंडीशन मिलता है, इस तरह के जो है चीजें अवेलेबल हो पाती हैं। So Assam is the largest producer of state. Assam is the state which is the largest producer of tea in India. Then India is the leading producer as well as exporter of tea in the world. But now we are facing problems from Sri Lanka also. So now you can see that ये आपके टी गार्डन है ये। देन आप आजकल तो बहुत वैरायटी ऑफ टीज चल रही है, लाइक ग्रीन टी का काफी ट्रेंड चल रहा है आजकल। नाउ कॉफी, कॉफी जो है इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ वर्ल्ड्स कॉफी। मतलब इंडिया में कॉफी का बहुत ज्यादा चलन नहीं है। जैसे ब्राजील जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील जो है आपका कॉफी में। तो इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में इतना कंज्यूम नहीं किया जाता, लेकिन जो हमारे हाई अर्बन जो हमारे लोग हैं वो शहरों में पसंद करते हैं कॉफी पीना। और कभी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर, तो कभी कुछ कौन कौन सी डिफरेंट कॉफीज होती हैं। लेकिन अभी भी हमारे जो स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया के जो गांव है या जो नॉर्मल फैमिलीज है, वहाँ पे बहुत ही कभी शौक के तौर पे कॉफी पीते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में इसका काफी ज्यादा चलन है। जैसे हम यहाँ पे डेली आई थिंक जैसे टी कंज्यूम करते हैं, वहाँ पे कॉफी। तो बिना आप ऐसा होता है साउथ Yes, में? ma'am. And we got used to coffee so much that if we taste chai, it feels bitter. अच्छा, आप लोगों को मतलब टी जो है बिटर टेस्ट आता है उसका? Yes, ma'am. अब जैसे अब हम लोग कॉफी पीते हैं ना, तो हमें जैसे कॉफी स्ट्रांग लगती है ना, तो हमें लगता है कि बहुत कड़वी है ना? तो Yes, हमें ma'am. थोड़ा And we feel bitter if we have chai. तो चाय टी आप लोग कंज्यूम करते नहीं कभी, या फिर No, बहुत ma'am. कम? ओके, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मतलब कॉफी का ही जो है ट्रेंड है, तो वो ऐसे ही टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब जैसे मैं कभी कभी कॉफी पीती हूँ, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब नहीं, अगर आप उसमें शुगर मिक्स किया ज्यादा तब तो चलो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी भी स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब वैसा। लेकिन बहुत लोग तो विदाउट शुगर भी इसको कंज्यूम करते हैं फॉर हेल्थ पर्पज। So India coffee is known in the world for its good quality. Again, it was introduced by the Britishers only. The Arabica variety, वैसे तो कॉफी की बहुत सारी वैरायटीज होती है, बट अरेबिका वैरायटी जो है हमारे इंडिया में पाई जाती है, जो कि यमन से लाई गई थी। यमन आप जानते हो ना कहाँ पे? जहाँ पे ओमान, सऊदी अरेबिया के ही जस्ट साउथ में है आपका ओमान, यमन, ये सब कंट्रीज मिडिल ईस्ट में। देन दिस वैरायटी ऑफ इज ऑफ ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। तो हमारे देश में अच्छी क्वालिटी का जो है कॉफी ग्रो होता है। इट्स कल्टिवेशन वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे। बाबा बुदान हिल्स कहाँ पे? आपके कर्नाटका में, एंड नीलगिरी इन कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। तो इन स्टेट्स में जो है, इनफैक्ट कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। सबसे अधिक टी कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, कौन से स्टेट में? Ma'am, Assam. मैम आसाम। यस, एंड कॉफी? मैम कर्नाटका। Karnataka. यस। तो हियर यू कैन सी, आपने देखा भी है, मैंने तो रियल में देखा है जब मैं कर्नाटका से गई थी। तो बेंगलोर है, सॉरी बेंगलोर से कौन सा एरिया है याद नहीं आ रहा मुझे, एलिप्पी एलपूजा, मतलब वो तो केरल में है। लेकिन कर्नाटका में भी मैंने पूरी पहाड़ियाँ देखी है, मतलब किस तरह से, ये बहुत ही अच्छा लगता है। रबर कल्टीवेशन देखा है। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप साउथ इंडिया में जरूर जाइए, और वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आप देखिए, बहुत ही मतलब आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे ये सब जो प्लांटेशन क्रॉप्स को देखकर, कि जो आप पढ़ते हो आप रियल में देखोगे कैसे रबर वहाँ पे निकाला जाता है, रबर के पेड़। देन कॉफी कल्टीवेशन, तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे। वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ बहुत ऊंची नहीं होती हैं, लेकिन आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा देख के, बहुत आप इंजॉय करोगे, नेचर के बहुत ही क्लोज है। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, एंड इट ग्रोज ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स ऑल्सो। ठीक है, हम दोनों भी काफी अच्छा ग्रो करते हैं हम लोग। नाउ हमारे वर्ल्ड में मार्केट में क्या फ्रूट्स इन ग्रेट डिमांड कौन सी? मैंगोज। हमारे मैंगोज आपको पता है ना, जो बेहतर क्वालिटी के मैंगोज होते हैं, दे आर एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड। और हम शायद वो चीज़ कंज्यूम भी नहीं कर पाते, हमें पता भी नहीं हमारे इंडिया में इतना अच्छा मैंगो वैरायटी का मैंगो होता है। लाइक महाराष्ट्र जो है, आंध्र प्रदेश है, यूपी है, एंड वेस्ट बंगाल। तो इन स्टेट्स में जो है मैंगो कल्टीवेशन काफ़ी अधिक होता है, इनफैक्ट यूपी में बहुत ज़्यादा होता है। देन नागपुर की ऑरेंजेस काफ़ी फेमस हैं,
एंड चेरापूंजी के नागपुर कहाँ पे है? वेयर इज नागपुर? Ma'am, in the Maharashtra. यस. एंड चेरापूंजी? वेयर इज चेरापूंजी? व्हाई इट इज फेमस? Ma'am, it is famous for rain, heavy rains. यस. एंड विच स्टेट्स इट लाइज? Ma'am, Meghalaya. यस, मेघालय. और बच्चों को कुछ नहीं पता है ना? आप लोग को इतनी जनरल नॉलेज की बातें नहीं पता है, सिर्फ रट्टा मारना है. चेरापूंजी मेघालय में है एंड मौसम राम इसके पास है, जो आप रेनफॉल के नजरिए से आप पढ़ते हो उसके. इसे बनानाज ऑफ केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. अच्छा, आप साउथ में जाएंगे तो आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बनानाज भी देखने को मिले. कई बनानाज होते हैं बहुत लंबे होते हैं, मतलब मैंने देखे हैं. और देन कुछ पिंक कलर के होते हैं, है ना, कुछ अलग डिफरेंट डिफरेंट उनके नाम होते हैं, जो वो उसी पर्टिकुलर स्टेट में मिलते हैं. तो बनानास की भी डिफरेंट वेराइटीज है. देन लीची है, ग्वावा उत्तर प्रदेश के फेमस हैं, पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय. देन हाँ, मेघालय चले जाओ, वहाँ पे पाइनएप्पल्स तो आराम से, यहाँ पे बहुत कॉस्टली होते हैं ना, लेकिन वहाँ पे बहुत सस्ते में मिल जाते हैं क्योंकि वहीं पे कल्टीवेशन होता है इसका. देन ग्रेप्स ऑफ आंध्रा एंड महाराष्ट्र, स्पेशली नासिक के बारे में आपने सुना होगा. जैसे कि विटीकल्चर, हम लोग विटीकल्चर के बारे में आपने सुना होगा ना, जहाँ पे ग्रेप की कल्टीवेशन होती है इटली में. ये जो आपके भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी के जो एरियाज हैं, जहाँ पे विटीकल्चर करके अंगूरों से मदिरा बनाई जाती है ना, वाइन बनाए जाते हैं. तो वैसे ही हमारे इंडिया पे लो स्केल पर होता है, लेकिन वो होता है कहाँ पे? नासिक, महाराष्ट्र में. वहाँ पे भी ग्रेप कल्टीवेशन होता है और उससे वाइन बनाई जाती है. देन एप्पल्स, पीयर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. तो ये जो हमारे माउंटेनियस एरियाज है, वहाँ पे आपके ऑर्चर्ड्स में जो है आप देख सकते हैं, जैसे कि ये टोमेटो है, या फिर आपके जो ये क्या है, एप्पल है ना. तो देन पीयर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये सब चीजें ग्रो की जाती है. India produces 13% of the world's vegetables. It is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. तो आप समझ लीजिए कि India, because it lies in the tropical and subtropical climate, so it has it grows a number of crops. Then rubber. Rubber is an equatorial crop है, but under special condition it is also grown in tropical and subtropical areas. Then जो मैंने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इक्वेटोरियल क्रॉप क्या होता है, ट्रॉपिकल एरियाज क्या होते हैं. तो नियर टू द इक्वेटर, अगेन इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर and temperature of 25 degree centigrade Celsius. It is an important industrial raw material और इसे different industries में यूज किया जाता है for making. आपको पता ही है रबर किस किस काम आता है. केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, हिल्स ऑफ गारो हिल्स ऑफ मेघालय में ये ग्रो किया जाता है. इंडिया रैंक्स 5th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स. ये देखिए आप, ये है आपके रबर प्लांट्स और कैसे इसमें से कट मार्क करके यहाँ पे लेटेक्स निकाला जाता है. कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रबर को देखो किससे यूज किया जाता है? ऑटो टायर्स एंड ट्यूब. सबसे अधिक, ये देखिए, सबसे अधिक अगर हम नेचुरल रबर को यूज करते हैं तो किसमें यूज करते हैं? ये टायर जो होते हैं ना, कार में, ऑटोमोबाइल्स में टायर बनाने के लिए और ट्यूब्स बनाने के लिए यूज करते हैं. उसके बाद साइकिल का टायर एंड ट्यूब बनाने के लिए, देन कैमल बैग बनाने के लिए, देन फुटवेयर, चप्पलें बनाने के लिए यूज करते हैं रबर का. देन बेल्ट्स एंड होसेस बनाने के लिए यूज करते हैं. लेटेक्स फोम यूज करते हैं बनाने के लिए. डिप्ड गुड्स और अदर्स, मतलब डिफरेंट वेराइटीज होती है रबर की, लेकिन सबसे अधिक हम कार और जो व्हीकल्स होते हैं उनके पहिए जो होते हैं वो बनाने के लिए यूज करते हैं. नाउ फाइबर क्रॉप्स. Fiber crops like cotton, jute, hemp and natural silk are 4 major fiber crops grown in India. Fiber basically वो होते हैं जिनसे रेशे निकलते हैं, जिनसे धागे निकलते हैं. The first 3 are derived from the crops grown in the soil. Like जैसे कि आपका कॉटन, जूट, हेम्प है. हेम्प एक तरह की घास होती है, सो इनसे आपके रेशे बनते हैं. लेकिन जो सिल्क होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल. एनिमल मतलब आपका जो कोकून होता है ना, देखा आप लोगों ने, सिल्क वॉर्म जो होता है, उससे इसको डिराइव किया जाता है. देखिए, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर. तो जब हम सिल्क वॉर्म को रेयर करके उससे सिल्क के धागे रेशे तैयार करते हैं तो उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं. ये देखिए सेरीकल्चर की प्रैक्टिस, यहाँ पे रेयर किया जा रहा है सिल्क वॉर्म्स को. मैं इसमें एक मिनट देखती हूँ. अच्छा, इसमें अभी काफ़ी लेंदी है, तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं. तो आपको बच्चों समझ में आया जो पढ़ाया गया? Yes, ma'am. Okay. So basically, first of all, I will ask you some questions like cultivation of high value fruits, vegetables and flowers is known as dash type of farming. क्या कहते हैं इसे? मैम हॉर्टिकल्चर. Very good, horticulture.
Then horticulture is mainly practiced near urban areas. Why? Ma'am, because urban areas are most likely to purchase the horticultural organic matter than rural area. And why they are able to purchase? Because they have, you have to use this word, high purchasing urban consumers, है ना, rich urban consumers. आप ये word use कर सकते हो, rich urban consumers वहाँ रहते हैं, that's why. And good transportation. Very good. Next question is, which state is the largest producer of pulses in India? Ma'am, Madhya Ma'am, Pradesh. Madhya Pradesh. Yes, Madhya Pradesh, correct. Ragi? Ma'am, Karnataka. Yes, Karnataka. Then jowar? Maharashtra. Ma'am, Maharashtra. Yes. And then bajra? Ma'am, Rajasthan. Very good, Rajasthan. Name 3 millets which are grown in India. Millet crops के नाम बताइए. Ma'am, ragi, jawar, bajra. वेरी गुड. अभी तो मैंने वही सब पूछा था आपसे. तो मिलेट्स विच आर कोर्स ग्रेन्ड क्रॉप्स, जिनके दाने मोटे होते हैं, लाइक ज्वार, रागी एंड बाजरा. एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे मिलेट्स के नाम बताइए, इनमें से कौन सा मिलेट है. समझ रहे हो ना. तो आपको ऑप्शन दे दिया गया, राइस, वीट, देन ज्वार, बाजरा, जो भी है, तो आपको उसमें से पहचानना पड़ेगा मिलेट्स कौन से होते हैं. Which crop takes 1 year to grow in the field? Sugarcane. Ma'am, sugarcane. Sugarcane. Largest producing state of sugarcane in India? Ma'am, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Wheat? Ma'am, Uttar Pradesh. Yes. Rice? Ma'am, South India. साउथ इंडिया स्टेट है बेटा. चलो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया. बट Ma'am, West Bengal. वेस्ट बंगाल, अभी तो बताया था मैंने कितनी बार. वहां पे एक साल में वहां के जो किसान होते हैं अपने खेतों पर 3 बार राइस की फसल को ग्रो करते हैं. ऑस, बोरो एंड अमन. आप देखना बुक में लिखना, ऑस, बोरो एंड अमन. दीज आर 3 डिफरेंट वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन साउथ इंडिया. 3 टाइम्स ग्रो किया जाता है. ओके. देन टेल मी, sugarcane is a which season crop? Ma'am, it's a all-season crop. It is grown in the each and every month. ओके. बेसिकली हम इसे खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं, बट इट टेक्स 1 लॉन्ग ईयर जो प्रॉपर ग्रोथ में इसका लगता है. ओके. देन टेल मी, गिव मी 2 एग्जांपल्स ऑफ दोज क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों में ही क्रॉप्स ग्रो कर जाते हैं. कौन से क्रॉप्स है, दो बताइए. अभी आप लास्ट में वही पढ़ रहे थे या अभी आपने पढ़ा नहीं रबर के बारे में. रबर है, शुगर केन है ना. तो दीज आर द दोज क्रॉप्स which grow well in tropical and subtropical climate. देन आप बताइए मुझे, वो कौन सा क्रॉप है which requires temperature near to 25 degree centigrade and rainfall above 200 centimeter. Rubber. Yes, rubber. कॉफी कल्टीवेशन सबसे अधिक कहाँ होता है? Which state produces maximum coffee? Ma'am, Karnataka. 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 Ma'am, Karnataka. Yes, कर्नाटका. ओके. तो अभी तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछा जा सकता है. नेचुरल रबर सबसे अधिक किस चीज में यूज किया जाता है, किस सेक्टर में, क्या बनाने में? Ma'am, auto tires. यस. ठीक है. तो अभी आप जितनी मैंने स्लाइड्स बताई उनको थोड़ा सा एक बार और पढ़ लीजिएगा. कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से. आई होप कि आपको समझ में आएगा. आगे की जो चीज़ें वो हम लोग नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे. थैंक यू क्लास. जय हिंद मैम. अच्छा, इसके एक मिनट वेट.